Dr. Shamvil Ashraf works at one of the most respected and prestigious hospital network of Pakistan, Indus Hospital Network. He's a pediatric oncologist और ये हेल्थ रैब के जो है वो बोर्ड मेंबर भी हैं माशाल्लाह. तो डॉक्टर शैमिल अगर प्लीज आप एक बेसिक. जी, आपने आधा इंट्रोडक्शन तो करा ही दिया है. तो मैं बेसिकली पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ एंड आई joined, actually I merged Children Cancer Foundation with Indus Hospital about a few years back, and now I am the Executive Director Medical Services for Indus Health Network. We are running 12 hospitals, and apart from this we have many primary care centers. जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है तो Indus has been on front line for the COVID epidemic from day one. We have been involved with the Sindh government for advisory capacity in building, capacity building. Immediately after this, we helped them in establishing isolation center, quarantine centers, and we at Indus ourselves established a COVID unit with ICU and HDU. And we were involved in many community activities as well. Like our Global Health Directorate was involved in tracing the follow-up patient at home and also educating masses through, we developed online app for the screening initially, which was used in 57 countries actually for screening as a screening tool. So we have worked on not only on the treatment side, but we were the first actually Sindh government lab. With the help of the Sindh government, we established the COVID lab at Indus, and so far it has done more than 29,000 tests. So this is one of the major achievement at our end of providing the services to many hospitals in Karachi and to government of Sindh and our own, where we have established the testing facility. And we also have been in forefront in education and training. We did the first webinar on the COVID management, where we involved all the treating centers. And through a Google survey, we asked them what they're doing and how we can work together. And so it was attended by more than 500 people. So we have been working on all front, from the treatment to diagnosis to teaching and training, education and research. As far as research, we will come to that when we talk about the research aspect. But we have a Indus Health Research Center, which is actively involved in various epidemiological, clinical research at the moment for COVID related. So all in all, it has been a very busy, very hectic, very demanding last 3 months, where we not only have to continue to fight for the pandemic. Actually, our Muzaffargarh Center at Teja Bazargan Hospital is the largest Corona center for Southern Punjab. So we all the Southern Punjab, DG Khan, Muzaffargarh district and Multan के अच्छे खासे cases जो हैं वो they are managed at the Muzaffargarh Hospital. So we are working in both provinces actually. Chale. Thank you very much. I'll move now to Dr. Shamvil, जो आपके हमारे मेहमान भी हैं और मेजबान भी हैं. He's a board member of Health RAB also, and he's a clinician. So आपसे और मैंने इत्तेफाक की बात है कि डॉक्टर जावेद अकरम ने इसका जिक्र किया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का, एंड माय क्वेश्चन टू डॉक्टर शैमविल वो यही था कि आर वी प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ऑल्दो ईबीएम के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय भी है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन इस पेंडेमिक में आर वी फॉलोइंग दैट. दूसरा ये कि वन ऑफ द कमेंट्स व्हिच फैसल सुल्तान का मैंने एक वेबिनार किया और फैसल ने एक बात की, उसमें जुल्फिकार भुट्टा was the other speaker and Paul Barish from US, and Faisal Sultan said कि जी the science is also changing. So I would want you to comment on that कि is the science around COVID changing, कि आज जो हमें पता होता है शायद एक हफ्ते के बाद जो है हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है. So if you can comment on that. और दूसरा ये कि local research
for local management protocols. क्या ये हम कर रहे हैं या हम सिर्फ और सिर्फ we just copying what others are doing, whether it's in the West or in China. So इसमें as a clinician, क्योंकि आपका अस्पताल जो है वो front line पर है in treating patients also. So इसके ऊपर अगर आप kindly जो है वो रोशनी डाल सके कि ये जो disease spread है पाकिस्तान। ठीक, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला सवाल ये है कि आर वी प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो भाई कोविड ऐसा वायरस है जिसके बारे में दुनिया को ना पहले पता था ना अभी बहुत ज्यादा पता है, ठीक है, एंड थिंग्स आर फोल्डिंग एवरी डे, अनफोल्डिंग एवरी डे। तो डेफिनेटली नोबडी इन द वर्ल्ड इज डूइंग प्योर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। बहुत सारी चीजें जो की गई वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी चूंकि ना तो हमें सही से पता है ना उसका बिहेवियर हमें सही से पता है, तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस लोगों को थे, जो लोगों ने देखा, जो लोगों ने करके सीखा, उसको फॉलो किया गया बहुत सारी जगहों। जैसे चाइना ने सबसे पहले चूंकि इसको डील किया तो बहुत सारी चीजें चाइना से आई, ठीक है। फिर जो है वो हमारे पास आने से पहले जो है वो यूरोप हैज गॉन थ्रू अ वेरी रफ फेस इन इटाली एंड स्पेन, तो वहां से कुछ चीजें फिर यूएस में हुआ। तो एक्चुअली लोगों से कम्युनिकेट करके, लोगों से देख करके दूसरे सेंटर्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ये चीजें इवॉल्व हुई हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो बिल्कुल क्लियर है कि नॉट एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड, और वेरी लिटिल इज एविडेंस बेस्ड एक्चुअली, ठीक है ना। जो पहली फिजियोलॉजी आई कि भाई ये ARDS है, ठीक है ना, फिर ये हुआ कि नहीं जी ये ARDS नहीं है, इसमें सारी चीजें जो हैं वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट की वजह से हैं, तो ये जो है ना वो एंटी कोगुलेंट जो है ना वो शुड बी ए पार्ट ऑफ योर रेजिम। फिर स्पेन से डेटा आया कि साहब ये तो जो है ना वो ये तो कुछ जो साइटोकाइन स्टॉर्म जो है ये सबसे ज्यादा लीथल है, तो इससे पहले हमने जो हाई डोज मिथाइल प्रेड इस्तेमाल किए तो उससे हमें बहुत फर्क पड़ा है। तो फिर ये कॉम्बिनेशन बनी कि भाई कुछ को जो है वो हाई डोज, सबको जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट, अर्ली मॉडरेट को हाई डोज मिथाइल प्रेड दिया जाए। फिर जो है वो डेटा आया कि जनाब IVIG का फायदा होता है, वो भी लोगों ने फिर इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर प्लाज्मा केम इनटू द पिक्चर फ्रॉम वेरी अर्ली, फिर प्लाज्मा के ऊपर काम शुरू हुआ। तो देयर आर मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, जैसे आपका मिथाइल प्रेड है, आपका ट्रूसिजिमैब है, जो आपका हमारा वो जो है साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए मोनोक्लोनल। इसके अलावा जो आप यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट करते हैं आप। फिर उसके बाद लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह हुई आखिरी दिनों में या कुछ दिनों पहले तक कि वेंट पे जाने से जो है ना आपको बचाना है। Once the patient goes on to the vent, the prognosis is very poor. तो इसलिए जो है वो चीजें हैं इवॉल्व एंड तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि एविडेंस जमा हो रहा है, एविडेंस इकट्ठा हो रहा है, इट्स नॉट एविडेंस बेस्ड एट yet. People are using different regimes, people are using different treatment, but 5-6 चीजों के अराउंड ही घूमती है चीजें। हाइडोज मिथाइल प्रेड हुई, उसके बाद फिर जो है एंटीकोगुलेंट हुई, इन चीजें। दूसरा जो आपका सवाल का हिस्सा है वो है कि क्या साइंस चेंज हो रही है। यस, चेंज हो रही है, इवन एट डायग्नोस्टिक। अब हम जो है वो 11वें दिन PCR कर रहे थे, 14वें दिन PCR कर रहे थे, 18वें दिन PCR कर रहे थे। बाद में अब ये गाइडलाइन है कि भाई 10 दिन के बाद PCR करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो वो ब्रेक हो चुका होता है, वो RNA मौजूद रहेगा, 6 हफ्ते तक मौजूद रह सकता है, वो पॉजिटिव आता रहेगा। तो लिहाजा 10 दिन के बाद आप छुट्टी करें और कम्युनिटी में भेजें एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। तो थिंग्स आर इवॉल्विंग एवरी डे, ठीक है ना। अब ये एंटीबॉडी टेस्टिंग भी इवॉल्व होगी एंड आई टोटली एग्री विद जनरल साहब के इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस एट द मोमेंट। वी डोंट हैव इनफ डेटा ऑन इट, हम इसके ऊपर किसी की डायग्नोसिस अभी बेस नहीं कर सकते। हाँ, जब आपके पास बहुत सारा डेटा जमा हो जाए PCR और एंटीबॉडी इकट्ठे का, एंड देन यू कोरिलेट देम के PCR और एंटीबॉडी कितना कंकरेंट फायदा है और कितना किस डे पे जाकर एंटीबॉडी बनती है, किस डे पे PCR, तो इट इज डेफिनेटली एन इवॉल्विंग साइंस. It's so early in COVID pandemic, or so early, and so many research are going on diagnostic front, on the treatment front, on the follow-up
पे बहुत सारी चीज़ें, हमें भी तो ये भी नहीं पता है कि ये इम्यूनिटी कितने दिन रहेगी, हमें ये भी नहीं पता है कि जिसको री इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी हमें तो कुछ भी नहीं पता है, इस मर्ज का कुछ हिस्सा ही पता है हमें, ठीक है ना। अभी अब पिछले दिनों हमें एक पेशेंट स्ट्रोक के साथ आया एंड ही वाज कोविड पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, इट प्रेजेंट विद इंसेफ्लाइटिस, he presented with encephalitis. So there will be many other presentation. कावासाकी डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे दुनिया में। अभी एक नया जो है वो ये है कि भाई पिछले 3 महीने में there have been lot of shingles, lot of herpes zoster, ठीक है ना, रीएक्टिवेट हुआ। मेरी वाइफ को भी एक्चुअली हुआ तो 1 महीना पहले, मतलब आउट ऑफ द ब्लूम शी गॉट कि मुझे जो है ना वो इधर खारिश हो रही है, दर्द हो रहा है। तो 1-2 दिन मैंने कहा कुछ नहीं होगा यार, ऐसे ही होता रहता है, देख लो। फिर उसके तीसरे दिन उसने कहा कि नहीं ये नीचे आ रहा है। मैंने कहा वॉच देखने दो मुझे लगता है तुम्हें हर्पीस जोस्टर हो रहा है, एंड इट वाज हर्पीस जोस्टर। एंड नाउ डेटा इज कमिंग कि इट मे बी रिलेटेड टू कोविड-19। देयर आर फ्यू लोकल रिसर्च की फिर कितनी जरूरत है हमें? तो इसलिए जो है वो इट इज अ चेंजिंग एवरी साइंस, इट इज एन इवॉल्विंग साइंस, मोर एंड मोर नॉलेज वी आर गेनिंग एवरी डे। तीसरा सवाल आपका जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा अलमिया ये है कि हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम डेटा नहीं सही जमा करते, हम प्रोस्पेक्टिव डेटा कलेक्ट नहीं करते। मैं तो ऑन्कोलॉजी करता रहा हूँ पिछले जो है ना 25 साल से, तो मैंने यही देखा है कि अगर आप अपना डेटा नहीं जमा करते तो आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं, आप अपनी कामयाबी भी नहीं पता होती, आपको अपनी गलती भी नहीं पता होती। तो आई थिंक कि जो लोकल डेटा है वो चाहे आप कोई रिसर्च करें ना करें, अभी आप जो कर रहे हैं वो उसको डॉक्यूमेंट करते जाएं। आप कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आप अपनी तमाम वेरिएबल्स को इकट्ठा करें, ठीक है ना, एंड देन पूल देम, एंड देन चलो प्रोस्पेक्टिव लर्न नहीं कर सकते तो रेट्रोस्पेक्टिव जाके लर्न कर सके आदमी 3 महीने बाद। और लोकल इसलिए इम्पोर्टेंट है, आई विल टेल यू कि मैं 2 सेंटर्स देख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कराची का सेंटर भी देख रहा हूँ, मैं मुजफ्फरगढ़ का सेंटर भी देख रहा हूँ। They are 2 entirely different COVID into provinces, ठीक है। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में 400 पेशेंट जो है वो दाखिल हुए डे 1 से, क्वारंटाइन के तौर पे वो यूज कर रहे थे। मैं उनसे लड़ रहा था कि भाई आप इसको क्यों क्वारंटाइन के तौर पे यूज करें, ये हमारा टर्शरी केयर अस्पताल है भाई, खुदा के वास्ते पॉजिटिव हो जाता है घर भेजो यार, कम से कम उसको घर पे आइसोलेट कर दो। लेकिन इससे फायदा ये हुआ मुझे कि मुझे पूरा बिहेवियर 400 लोगों का पता चल गया कि ये पूरे 400 बिहेव कैसे करते हैं। 95% ऑफ देम वर वेरी माइल्ड, बल्कि एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक, टोटली एसिम्प्टोमेटिक। राइट। 5% had some symptoms, ठीक है ना, 4%, and only 6 patients have gone on to ICU, ठीक है, out of those। तो वहाँ की जो वेराइटी कोविड है इज मच माइल्डर देन कराची। वहाँ की प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी कराची से, ये आप कह रहे हैं? मच माइल्डर, मतलब जो है वो हमारे आज बेड खाली नहीं रहता, हमारा जो है वो 26 बेड का वार्ड जो है वो भरा रहता है, और वी आर पीपल वेटिंग इन दी ER, ठीक है ना। 8 से 10-12 लोग इंतजार कर रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली 2-3 से ज्यादा हम एक दिन में ले नहीं पाते, क्योंकि या तो 2-3 डिस्चार्ज होते हैं या 1-2 एक्सपायर होते हैं, तो 2-3 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं बनती। तो आई थिंक ये डेटा कलेक्शन ऑल ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है एक जो आपने पॉइंट डॉक्टर शैम्विल, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, क्योंकि मुझे टाइम भी मैनेज करना है, आई एम सॉरी, लेकिन एक पॉइंट आपने जो अभी बहुत मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट है, और जिसमें हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड को भी रोल अदा करना चाहिए, इंडस को भी करना चाहिए, और जैल साहब भी मौजूद है, मे बी वी कैन वर्क टुगेदर विद UHS आल्सो। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा जो है ना इसको समराइज किया। और डॉक्टर शैम्विल, आपसे जो मेरा जो सवाल है, क्योंकि मैं जानता हूँ you're a clinician, you're running one of the largest healthcare systems, so 12 hospitals is a big system, unique model, paperless hospital है आपका माशाल्लाह, research का आपके पास dedicated center है, so I understand that you understand and you know you are actually developing the healthcare system। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा इसमें जो है ना हमें गाइड करें और अपना एक व्यू दें कि रिसर्च और हेल्थ सिस्टम इनोवेशन के ऊपर
अगर हम उसको कैसे अपने हेल्थ केयर सिस्टम को, नॉट ओनली इंडस इन पाकिस्तान बट हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कैसे थ्रू इनोवेशन और रिसर्च जो है वो बेहतर कर सकते हैं, और मे बी अ लिटिल बिट अबाउट द न्यू नॉर्म of healthcare, whether it's from the technology perspective or whether it is from research or delivery. तो ये आपसे दो सवाल हैं, अगर आप kindly within 5 minutes. चले, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो जो हमें देखनी चाहिए वो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों की सेहत। ठीक है ना, जो आपके अवाम की सेहत है और आपके अवाम का जो हेल्थ केयर डिलीवरी है, हुआ ये है कि ये कोविड के चक्कर में जो है वो नॉन कोविड जो है ना वो बहुत सफ़र किया है। ठीक है, तो नॉन कोविड जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है, एंड आई थिंक कि जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो ये है हाउ टू डिलीवर हेल्थ केयर in a pandemic with the fear that the healthcare worker will be affected and with the fear that you will contract infection from the patient or you will give infection to the patient. जहाँ हेल्थ केयर के अंदर कोविड की इम्पोर्टेंस है वहाँ बेतहाशा चीज़ें जो हैं वो नॉन कोविड हेल्थ केयर है, जो कि हमारे लिए इस वक्त, जो आज ही हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, हाउ टू स्टार्ट आवर ओपीडी, हाउ टू स्टार्ट आवर नॉर्मल थिएटर, हाउ टू स्टार्ट आवर नॉर्मल वर्किंग इन द मिड्स ऑफ दिस सर्ज ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड। बट हमने ये फैसला तो ये किया है कि हमें वी कांट क्लोज दिस डाउन फॉर एवर। ठीक है ना, हमें अपने जो है वो हमारी वेटिंग लिस्ट और हमारा जो वो है 12,000 ओपीडी की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। ठीक है ना, कई हजार ऑपरेशन जो है वो डेफर हो चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव टू कैच अप एंड वी हैव टू गो थ्रू इट। तो पोस्ट कोविड ईरा तो बात की बात है, अभी तो कोविड ईरा में कैसे काम करना ये इंपॉर्टेंट है। तो कोविड ईरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ वर्कर एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव द एसेंशियल एंड द नॉर्मल केयर टू द इंडिविजुअल्स। अब इसमें जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारी इनोवेशंस तो ऑलरेडी करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे टू सी दैट मेनी पेशेंट फिजिकली। अब आप उतने पेशेंट नहीं देख सकते। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि आप हर आदमी को फिजिकल देखें, और देखना भी नहीं चाहिए। ये अंदाजा हुआ 3 महीने में कि बहुत सारे फजूल के पेशेंट आते हैं जिनको आने की जरूरत नहीं है। अब हमने ऑन्कोलॉजी में, जैसे हमारी ऑन्कोलॉजी नहीं बंद हो सकती, बच्चों की कैंसर केयर बंद नहीं हो सकती जो ऑन ट्रीटमेंट है, तो हमने व्हाट्सएप पे, फोन पे मुख्तलिफ तरीके से पेशेंट को कांटेक्ट किया, उनको फॉलो अप पे रखा। सिर्फ जिसको कीमो लगनी थी उसको हमने बुलाया, और इस तरह से हमारी ओपीडीज जो हैं वो श्रिंक होके चलती रही। लेकिन अब जाहिर है कि जो बाकी जो स्पेशलिटी है हमारे पास सारी, उनकी भी ओपीडी शुरू करनी है। तो वो सारी चीज़ें जो ना, क्राउड मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई मास्क पहन के आना है, डिस्टेंस रखना है। बहुत सारी फॉलो अप्स को आपको जो है ना वो आउट पेशेंट पे वो टेलीमेडिसिन पे या फोन पे या व्हाट्सएप पे करना पड़ेगा। सिमिलरली थिएटर्स, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 90% थिएटर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं करते किसी किस्म की। ठीक है ना, तो उनके अंदर अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकल आएगा तो आप सोचेंगे क्या हाल होगा। पूरा जो है ना वो HVAC सिस्टम जो है वो बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको आपको सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज आपको देखना पड़ेगा कि एयर एक्सचेंजेस आपके थिएटर में बेहतर हो। आपका कोविड के लिए आपको अलग करना पड़ेगा, नॉन कोविड एरिया अलग करना पड़ेगा। इसी तरह जो है वो आपकी पूरी जो ER है, अब ER बिल्कुल दो में सेग्रीगेट हो गई है। ठीक है ना, एक कोविड ER है, एक नॉन कोविड ER है, यानी एक रेस्पिरेटरी ER है और एक नॉन रेस्पिरेटरी ER है। अब दिस इज गोइंग टू गो फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, तो आपको निमोनियाज को, ब्रोंकियोलाइटिस को, रेस्पिरेटरी ER को डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। आपको जो है वो नॉन रेस्पिरेटरी ER को डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर एवर एक्चुअली, इट्स नॉट फॉर टुडे और टुमारो। So the new norm in healthcare. हाँ, इससे ये तो हेल्थ डिलीवरी का सिस्टम के। बाकी जो आपने नेशनल हेल्थ केयर की बात की, तो मैं आई एम सॉरी टू से कि हमारा मुल्क तो पेंडेमिक
क्या किसी किस्म की इमरजेंसी को डील करने का हेल्थ केयर रखते ही नहीं है। जिस मुल्क में 70% हेल्थ केयर प्राइवेट अस्पताल देख रहे हों और 30% गवर्नमेंट के पास हो, उस मुल्क में हेल्थ केयर का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? ठीक है ना। ठीक है। जिस जगह पर जो है वो छोटे छोटे गलियों में अस्पताल बने हुए हों, जिनकी ना कोई रेगुलेशन है ना कोई उनकी एक्रीडेशन है, ठीक है ना, वहां आप हेल्थ केयर सिस्टम की क्या बात करते हैं? ठीक है ना। ठीक। अनफॉर्चुनेटली यही जो हुआ है कि इस वक्त, हालांकि पाकिस्तान हैज बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी जो क्रिटिकल केयर के कोविड हैं वो बहुत कम है और हमारी मोर्टालिटी इस रीजन में भी कम है और दुनिया से तो बहुत ही कम है। उसके बावजूद हम नहीं कैटर कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, तो हमारी प्रोबेबली ह्यूमन रिसोर्स इतनी कमजोर है। डॉक्टर साहब, हम अगर मैं आपको कट करूं, सॉरी यहाँ पे, सो प्रोबेबली द नीड फॉर इनोवेशन इन द हेल्थ सिस्टम, ऑल द मोर, रिफॉर्म पाकिस्तान के लिए री, खास। पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है जकी, पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए, क्रिटिकल केयर तो एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में, ठीक है ना। चंद चंद मादूदे चंद अस्पताल के देयर आर नो क्रिटिकल केयर। बड़े बड़े अस्पताल में क्रिटिकल केयर फिजिशियन नहीं है, ठीक है ना। क्रिटिकल केयर एग्जिस्ट नहीं करता। इंडस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम थोड़ा सा बेहतर इसलिए परफॉर्म कर गए कि वी हैड अ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, we had an emergency response committee, we had a good infection control team, we had a very good ID team, ठीक है ना, we had a very robust ID department, we have a very good global health directorate। तो ये सारा एंड प्लस लैब, डॉक्टर सबा जमाल हमारी जो है ना चीता है इस मामले में। तो वो जो है वो सारी जो हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ना, इसने हमें जो है ना वो फ्रंट लाइन पे रोल अदा करने का ठीक है काबिल डॉक्टर साहब, बनाया। सही अगर है। यही चीज हम अप्लाई करें गवर्नमेंट लेवल पे तो हमें ये सारी चीजें गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए। ठीक है। बड़े आई अस्पतालों के थिंक अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। right. So we all agree, and as you know, कि मैं digital health और technology के अंदर, I've been working for now more than 2 decades. Telemedicine पे हम जब शुरू में बात करते थे, आज से 22-23 साल पहले, तो जाहिर बात है कि लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। So it's been a long journey, अगर मैं अपनी बात करूं, on telemedicine, more than 20 years, but what we understand now overall is that it is much more than telemedicine. It's the digital health environment, the innovation in healthcare, जिसके अंदर artificial intelligence और chatbots, और जैसा कि यूके में मैंने देखा है कि यूके ने अपना ER का लोड, जो उनकी जो ER है उसका लोड कम कर दिया using clinical decision support systems and chatbots. So when you use technology and when you innovate, तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ सिस्टम इनोवेशन है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, तो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू वर्क। डॉक्टर शैमविल, योर लास्ट फ्यू कमेंट्स एंड टेक होम मैसेजेस। नहीं, आई थिंक जो है वो बात जैसे जनरल साहब ने कही कि नेशनल कोलैबोरेशन, कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव विजडम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जावेद साहब ने भी बहुत अच्छी बात की। आई थिंक मेरा मैसेज यही है कि हम सब मिलजुल कर और अल्लाह पर भरोसा करके जो है ना वो एफर्ट करें। एंड दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी, वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर and we should collaborate and we should work together to go through this difficult phase, and inshallah thing will get better। तो ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें इसको फेस करना चाहिए। और साथ साथ जो मेरा एक वो ये है कि देखिए, हुकूमत का लॉकडाउन, प्रोविंस का लॉकडाउन, ये कोई अहमियत नहीं रखता जब तक लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे। तो मेरा मैसेज तो यही होगा कि भाई ये एक मुश्किल वक्त है, इसको ना, इसका इलाज है हमारे पास। आपने जैसे कहा कि बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम बैठ गए हैं, ठीक है ना, तो बचाव ही इसका इलाज है। तो बचने की कोशिश करें, हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश करें। जो बेसिक 3 एहतियात है वो उसको जिंदगी का हिस्सा बना लें कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथ धोना है। बस यही आपको बचा सकता है। और इसी से वो बाकी हेल्थ सिस्टम बेहतर हो जाए, सब कुछ हो जाए, बाकी चीजें जो है ना वो आपको फिर भी जो है ना वो रिस्क पे रखेंगी। तो मेरा मैसेज यही है कि दिस मैसेज शुड गो टू एवरी पाकिस्तानी कि भाई सब काम करो, जो है ना बाजार भी जाओ,
अपने रोजगार भी कमाओ, अपना काम भी करो, लेकिन ये 3 एहतियात के साथ। ठीक है, आई थिंक वी ऑल हैव रियलाइज्ड अगेन कि हम शायद 3 काम कर सकते हैं। एक जिसकी आपने बात की, एहतियात, और एहतियात के मुख्तलिफ तरीके हैं, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस है, मास्क है एंड ऑल। दूसरा मे बी बिल्ड आवर इम्यूनिटी, चेंज आवर लाइफस्टाइल, ईट हेल्दी फूड एज अपोज टू द जंक फूड। तो ये मेरा ख्याल है कि उसकी भी एक एक्सट्रीम पर हम थे कि एक्सरसाइज करें, अपनी स्लीप पैटर्न बेहतर करें, जिसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। So I think that's the second component probably, and the third is the most important कि अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते रहें। We have seen कि दुआ का जो पावर है। तो I think these are the 3 probably areas जिसमें हम काम कर सकते हैं।